In our last lecture, we were doing composition of soil. And to study the composition of soil, these are the two things that are needed to us. Number one, soil. Okay? This is a very rough soil having stones and even a piece of leaf. Dry leaf is there. नहीं, वो आप लेके नहीं आए, नहीं तो मैं डाल देती. ठीक है? Now let's, if we need to study the composition of बच्चे, the simple thing is I am just adding water in it. Can you see the bubbles? Can you see the bubble formation? ठीक है? What does this bubble formation indicate? Yes, that soil contains air. ठीक है? Anyhow, our activity is not that soil contains air, लेकिन वो भी मैंने आपको शो कर दी है. बबल्स है ना? ठीक है, ये हमें सॉइल का चैप्टर है, तो ये हमने उसकी प्रॉपर्टीज में ये भी करना है दैट सॉइल कंटेन्स एयर. राइट? नाउ लेट्स ऐड वाटर एंड शेक इट वेल. काफी सारी सॉइल काफी गंदी है. गंदी तो होती है मींस, बट इट स्टिल कंटेन्स आई थिंक रबड़ पार्टिकल्स और पीसेस ऑफ पेपर. आई डोंट नो व्हाट इज इट. ठीक है? एनी हाउ, this is a juice. Anyone wants to take it? Okay. How are you now? Okay. So better not to shout. So children, I have made a shake for you guys. And now I will let it rest. Boys, please. Chalo, chocolate water shake for you guys. And now I will let it rest for some time so that its layer can be separated, and we will observe it nearby the end of the period. Okay? So can I keep it aside? Until then, we will go for the diagram and the other details. So let's start the diagram. Suppose this is our beaker. When we add water in the sand, we will found separate layers over here. So first layer that we found here, it is a layer of gravels, or you can say small stones. Although the soil I had used, I don't think there are stones in this soil, as it is moving very easily, right? So this is gravel. What should be the size of, listen. The estimated size of gravels is 0.2 mm in diameter to 0.5 or more. ठीक है? 0.2 mm से start होके it can be more than that also. That should be the size of ठीक है? That is the about estimated size of this gravels. जो 0.2 mm से बड़े होते हैं उनको gravels बोलते हैं. I think everyone has opened their notes notebook. Yes. And they are drawing the diagrams. Yes. Next, after there are these small particles of, okay, so I'm just labeling it, this is sand. What should be the estimate size of the sand particles? About 0.05 mm in diameter to 0.2 mm, right? और उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज क्या की थी? ग्रेवल, सैंड. सैंड के ऊपर क्या होता है? क्ले. क्ले का एस्टिमेटेड साइज किसी को पता है? Estimated size of clay is about 0.002 mm.
ठीक है, about 0.002 mm in diameter, और these are the very fine particles. ये आपके सैंड के हैं. You can draw the diagram. तो क्ले का जो साइज है वो देखो कितना माइन्यूट होता है. बिटवीन द सैंड एंड क्ले, क्ले और सैंड के बीच में वी आर हैविंग अनदर लेयर. एक और लेयर हमारे पास होती है विच वी यूज टू कॉल इट एज सिल्ट. सिल्ट का साइज जो होता है इट वेरीज फ्रॉम 0.002 टू 0.5. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, कोई पार्टिकल बड़ा कोई छोटा, जिसका साइज इन दोनों के बीच में वेरी करता है. ये जो आपका ये है 0.002 से लेके 0.05 तक ये साइज होता है आपका सिल्ट का. ठीक है, जो बचा हुआ आपका साइज है वो सिल्ट का है. हाँ, मिक्सचर कह सकते हैं. ठीक है, कोई पीस बड़ा होता है कोई छोटा होता है, जिसका साइज इन दोनों के बीच में होता है उसको हम कह देते हैं सिल्ट. एंड ऑब्वियसली क्ले इज वेरी फाइन पार्टिकल्स, बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म के पार्टिकल्स होते हैं. अबव दिस लेयर वी आर हैविंग अ लेयर ऑफ, इसके ऊपर वी आर हैविंग वाटर, और ऑब्वियसली वाटर का साइज हम नहीं लिखेंगे. आफ्टरवर्ड वी आर हैविंग ड्राई लीव्स, ओके, और यू कैन से एनीथिंग लाइक दैट, ट्विग्स एक्सेट्रा. ठीक है, कुछ भी जो आपके पार्टिकल्स होते हैं जो भी ऊपर है, दैट इज डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म विच वी यूज टू कॉल एज humus. Is responsible for the soil, it makes the soil fertile. It is nothing but the organic matter. It is the decayed organic matter. क्ले ये वाला सारा पार्ट आपका क्ले है. सिल्ट के ऊपर वाला जितना पार्ट होता है ये सारा क्ले है. ठीक है, दिस इज क्ले. ओके, यू विल एड ऑन डॉट्स बाय योरसेल्फ. It is a very fine particles. हाँ जी बच्चे, I think some of the students knows all the answers. So can I ask from them? Obviously diagram भी आपका हो गया, activity भी यहाँ पे हो गई. As you can see, I think the layers are started separating, है ना? So let's wait for another some time. Perhaps we will be able to see the layers. अभी तो बिल्कुल फिलहाल वाटर ही हो रहा है, पता नहीं, ये तो कह रही थी. For us it is humus. ठीक है जी, ये आपको करवा दिए, डायग्राम में ड्रॉ लिख देना, देन इट इज क्लियर. ठीक है, दैट इज बच्चे द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन मींस the things from which the soil is made up of. ठीक है, the particles that are to be present in the soil, they are this is the composition of the soil. And please don't get it confused with the word soil profile. Soil profile क्या होता है? That is the vertical section of the soil. Vertical section means when we dig the soil. Angadeep, can you come forward, please? Bache, keep your background. Stop, children. Hanji, you come forward to the front bench. Go at the last bench. Yes, one from this line also. Last bench is empty, bache. So one should go there. Hurry up.
Is the composition of soil clear to everyone? All of you have done that also? Now, bache, please don't repeat the same mistake. Soil profile is something different and soil composition is different. Composition means what is soil composed of, what is present inside the soil. That is composition. Profile means the vertical section of the soil. Means if we dig the soil, then we will found the different layers of the soil. That is the soil profile. Composition is different thing. Soil profile is different thing. Soil profile consists of layers of soil. I'm going to start, just finish this, then we will start about soil profile. Okay? So composition means the things of which soil made up of, and other thing, soil profile. Soil profile means different layers of soil. Again and again, I'm repeating from very short, you guys are confusing the 2 points. Okay, Ji? Now let's move to the, can I erase this now? Okay. Soil profile. If you want to observe the soil profile, then you can observe it from the hills, vertical side of the hills, or perhaps you need to dig a deep pit. बहुत ही deep आपको एक pit dig करनी पड़ेगी, and then you will observe the different sections of the soil. You will see the soil is distributed like that. Like at the lower end, it is having a very, very hard structures. Okay, very hard structures over here. They can be called as bedrock, and this is called as D horizon. We will discuss each and every layer separately. Okay, bedrock. Bedrock, or we can call it as D horizon. Above the bedrock, प्लीज एक चीज नोटिस करना, बेडरॉक के ऊपर एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं सी हॉरिजॉन, दैट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स. यहाँ पे पीसेस ऑफ इन्हीं रॉक्स के जो पीसेस होते हैं, इट कंटेन्स अनदर लेयर. यहाँ पे रॉक्स होते हैं, इन्हीं रॉक्स के पीसेस. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. ठीक है जी. और इन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स के ऊपर आपके पास एक और लेयर होती है. कैन यू रिमाइंड मी द नेम ऑफ दैट लेयर? इस लेयर का क्या नाम है? बी हॉरिजॉन. वो तो ABCD तो करेंगे ही नेचुरली है. जब ये D है तो ये C होगा, ये B होगा. ठीक है, ABCD तो करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये नाम पढ़ा हुआ है बहुत इजीली. नहीं पता, चलो छोड़ो, मैं बताती हूँ, बाद में बताती हूँ. पहले सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. Yes, it is called as topsoil, or we used to call it as A horizon now. अब आपको B वाला नाम पता चल गया. B लेयर का क्या नेम था? वेरी गुड, सेकेंड लेयर. शाबाश, सो इंटेलिजेंट क्लास. एक्चुअली क्लास इंटेलिजेंट है, पर दिमाग जरा थोड़ा और प्रेशर डालो, याद आ जाएगा. किया हुआ है. अच्छा, बुक में है नहीं. ओके, दैट इज व्हाई यू गेट्स कंफ्यूज्ड. इट इज सबसॉइल. सबने पढ़ा हुआ है. ओ अच्छा, 5th की बुक मंगवाओ.
Can I call your teacher also? 5th की बुक मंगवा के दिखा देती हूँ अभी। और ये हो ही नहीं सकता आपने सब सॉइल वर्ड ना पढ़ा हो। सबने पढ़ा हुआ है। चलो एनी हाउ सब सॉइल परहैप्स सी हॉरिजॉन का नाम शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। जो बच्चे बुक पे मेंशन कर रहे हैं वो साथ के साथ प्लीज मेंशन कर लो। इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम or we can say that it is sea horizon. SUBS है बेटे, sea horizon. And last is ये कौन सा पार्ट है? bedrock or we call it as D horizon. हाँ जी बच्चे, आज आपके डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं। नाउ आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा है थोड़ी लेयर्स, और ऊपर से यहाँ पे व्हाइट वाली और थोड़े थोड़े लीव्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स ह्यूमस इज विजिबल, वाटर इज विजिबल, बाकी लेयर्स को भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो वी विल ट्राई। नहीं होगा तो कल तक ऐसे ही रख देंगे, कल तक तो विजिबल हो ही जाएंगे। ठीक है, सो शैल वी मूव टू द डिटेल्स ऑफ दिस सॉइल प्रोफाइल। ओके, कर लो। I'm not going to erase it. It is very much there. हाँ जी, firstly, what is soil profile? हाँ जी आप। A vertical section through different layers Any other point? किसी के माइंड में कोई और डेफिनेशन है तो वो भी बोल सकता है। हाँ वो तो करना ही है। ठीक है, a vertical section through the different layers of soil is called soil profile. बच्चे after the period, ठीक है, this is called soil profile and we will see the different layers through this method. Himalaya, each different layer of soil is called as the horizon and it is divided into 4 horizons. ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको 4 के 4 हॉरिजॉन्स क्लियर कर दिए। ठीक है, so let us start with top soil or it is also called as A horizon. टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। हाँ जी बच्चे, टॉप सॉइल क्या होता है? हाँ, it is most topmost layer नहीं होता, it is the uppermost layer of the soil. ठीक है, uppermost layer of the soil. ठीक है, it contains lot of humus that makes it fertile. It contains lot of humus that make it fertile. Make it fertile or many trees, plants grow over here
many trees, plants, they grow over here. क्यों यहाँ ग्रो होते हैं? बिकॉज इट इज फर्टाइल और इट इज अ होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, टॉप सॉइल में रहते हैं, सब सॉइल तक तो नहीं जाते ऑर्गेनिजम्स, ऊपर ही ऊपर रहते हैं. होम ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स. एक चीज और बेटे जो आपको इस सॉइल के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज, हाँ जी, बैक बेंचर्स आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, नीचे लिख दो एक पॉइंट के ऊपर लिख, चलो ऊपर लिख देती हूँ. फिफ्थ पॉइंट में यहाँ लिख रही हूँ टॉप सॉइल का. अब ठीक है, बेटर. फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चे? जो टॉप सॉइल होती है आपकी, दैट इज यूजुअली सॉफ्ट, porous, and it will retain water and can retain water also. ओके जी, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और उसमें काफी वाटर भी होता है. उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, राइट? आउट और shall we continue? So that is about the top soil. Top soil, it is the uppermost soil. और अगर आपको डायग्राम याद हो, आप लोगों ने जो फिफ्थ क्लास में बनाया था टॉप सॉइल में, आपने यहाँ पे आई थिंक कुछ ट्री वगैरह भी बनाया होगा, प्लांट्स ड्रॉ किए होंगे, जो भी है, यू हैव ड्रॉन सम प्लांट्स और समथिंग लाइक दैट, जरूर किए होंगे. नहीं था? एक बेटे फिफ्थ में कुछ नहीं कटवाया था. ओके, रिलैक्स, जस्ट गो टेक पास, ब्रिंग द बुक ऑफ फिफ्थ क्लास. जब फिफ्थ साइंस की बुक लेके जा, लेके आओ. लिसन, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, लेट्स क्लियर. नहीं, लेके आओ. ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये चीजें बच्चे आपने की हुई हैं. इसके साथ हमने ऐड ऑन कर, अच्छा पहले ये खत्म कर ले. टॉप सॉइल के बाद सेकेंड सॉइल को रिटेन वाटर मीन्स ये वाटर थोड़ा बहुत होल्ड करती है, ताकि जो रूट्स हैं दे विल टेक द वाटर फ्रॉम इट. ठीक है, इट विल होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इट विल अलाउ टू गो डाउन, राइट? और सेकेंड, आफ्टर दिस टॉप सॉइल, ओपन इट, सॉइल वाला चैप्टर निकालो. बेटे बुक कोई भी लगा लो, वैसे ये पिछले 3 साल से यही बुक चल रही है. हम पीछे रह गए. बिल्कुल. हाँ जी, ये देखो, ये कॉम्पोजिशन और ये आपकी सॉइल प्रोफाइल. इट्स ओके. Anyhow, children, that is soft, porous, and retain water. Next is subsoil. Second is subsoil, or we can say this layer as B horizon. This B horizon, it is top soil जो है, uppermost layer of soil है. This layer of soil present just below the top soil, below first layer of the soil या top soil लिख सकते हैं. ठीक है, just below the top soil it is present. Top soil contains a lot of humus and it contains very less humus, very less amount of humus. ठीक है, amount of
ह्यूमस। थर्ड आपने क्या लिखा था? ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो हियर। टॉप सॉइल में roots of big trees reach over here, otherwise most of the plants they grow in topsoil. Roots of big trees reach here. जो बहुत बड़े ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स यहाँ तक पहुंचती हैं, राइट? लाइक ये दिस इज अ ट्री, तो इसकी रूट्स आपकी यहाँ तक पहुंच जाएंगी, बट अदरवाइज most of the plants they remain above in the topsoil. Okay जी, any other doubts? एक पॉइंट और ऐड करेंगे। बिल्कुल, ये सॉफ्ट है, पोरस है, वाटर रिटेन करती है, और जो आपकी सब सॉइल है इट इज कंपैरेटिवली हार्डर एंड compact than topsoil. Compact means बेटे उतनी स्पेस में थोड़ी ज्यादा आ जाती है, जिसको आप कहते हैं टाइट पैक्ड, ठीक है? Compact than topsoil, और साथ ही साथ this layer contains soluble minerals and iron oxides. This layer contains, इसमें soluble minerals होते हैं। The time is about to over बेटे, अगर किसी को डाउट है they will ask, otherwise I will shift to the next layer. It contains soluble minerals and iron oxides. फॉर्मूला लिख दो सीधा, FeO, Fe2O3, ठीक है? चलो, आयरन ऑक्साइड्स, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला, आयरन ऑक्साइड्स के 2-3 फॉर्मूले होते हैं। आयरन के ऑक्साइड्स बेटे, जो नॉर्मल आयरन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाती है। Fe2O3 करवाया था बेटे, ठीक है ना? FeO भी होता है, Fe2O3 करवाया होगा। सब सॉइल क्लियर है बेटे सबको? ठीक है, द टाइम इज अबाउट टू ओवर बेटे। तो यहाँ पे लिसन, सिर्फ एक टाइम हो गया रादर, और आपकी सॉइल की वेरिएशन सिर्फ इतनी हुई है कि यहाँ से हल्की सी क्ले दिख रही है, जो मैं यहाँ प्रेजेंट बच्चों को दिखा सकती हूँ, ऑनलाइन वालों को नहीं, पर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Tomorrow we will continue. Till then, revise the work.